السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ آج آپ کے پاس لے کے آئے ہوں۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ انفارمیشن غلط ہو سکتا ہے اس میں کچھ انفارمیشن صحیح ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں کچھ نہ پتا ہو، اور پھر آپ اس کے اوپر جو سرچ کرتے ہیں یا ریسرچ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ انفارمیشن کہاں سے آئی، یہ کیسے لگ گئی، اور کئی دفعہ ڈس انفارمیشن بھی ہوتی ہے۔ لیکن پوری ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ بڑی کلیئر ہو۔ داؤد ابراہیم کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، ہندوستان میں تو بہت زیادہ مشہور ہے، اور ان کی پولیس جو ہے وہ تو کانپتی ہے داؤد ابراہیم کے نام سے، خاص طور مہاراشٹرا کی پولیس جو ہے۔ داؤد ابراہیم کے متعلق آج آپ کو بتاتا ہوں کچھ باتیں، لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس کو شیئر کرنا ویڈیو کو مت بھولیے گا اپنے دوستوں سے۔ داؤد ابراہیم جو ہیں وہ انڈر ورلڈ دنیا کا بے تاج بادشاہ۔ داؤد ابراہیم سانولی رنگت، درمیانے درجے کا قد اور خاموش طبع انسان۔ اس سے ملنے والا کوئی بھی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا کہ اس شخص نے امریکی اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی افسروں کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں، جو بھارت میں بیک وقت دہشت گرد جبکہ غریبوں میں رابن ہوڈ اور غریب پرور کے طور پہ مشہور ہے۔ وہ ہے کہاں؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں، اور جسے کچھ معلوم ہے وہ کچھ بول نہیں سکتا۔ جنوبی ایشیا میں اگر کسی شخص نے اسمگلنگ کو باقاعدہ ایک صنعت کی شکل دے کر اس کے ذریعے بے انتہا دولت اور شہرت حاصل کی ہے تو وہ داؤد ابراہیم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ شخص مکمل طور پہ پراسرار ہے، مسٹری ہے، ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ کوئی شخص اس تک رسائی نہیں حاصل کر پاتا۔ اس بارے میں تمام لب خاموش ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بد اچھا بدنام برا۔ بھارت کی داؤد ابراہیم سے خاص شفقت اور محبت کی وجہ سے داؤد ابراہیم کو ایک ایسا ڈان بنا کر پیش کیا گیا جسے 11 ملکوں کی فوج ہی نہیں بلکہ کئی ملکوں کی پولیس 1995 سے تلاش کر رہی ہے۔ انٹرپول کے 2008 کی تیار کردہ فہرست کے مطابق اس کا نام دنیا کے سب سے زیادہ مطلوب 10 شخصیات میں چوتھے نمبر پر ہے۔ داؤد ابراہیم کا نام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مجرمین کی فہرست میں بھی شامل ہے، اور انٹرپول نے اس کے خلاف ایک ریڈ کارڈ یا ریڈ وارنٹ جو ہے وہ نوٹس جاری کیا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ داؤد کو کسی بھی عوامی مقام پر دیکھے جانے پر اسے گرفتار کرنا اس ملک کی پولیس کے لیے لازمی ہے جہاں پہ وہ دیکھا گیا یا جہاں پہ وہ سپاٹ ہو جائے۔ داؤد ابراہیم کا شمار دنیا کے دولت مند ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ فوربس میگزین نے اس کا شمار دنیا کے سب سے طاقتورین اشخاص میں 97 یعنی 57 نمبر پہ رکھا ہوا ہے، اور داؤد ابراہیم کا کاروبار ہندوستان، پاکستان، ملیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، سری لنکا، نیپال، UAE، جرمنی، فرانس، برطانیہ کے علاوہ افریقہ کے کئی ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق داؤد ابراہیم کی دولت جو ہے وہ 900 ارب روپے ہے، اور یہ ایک اندازہ ہی ہے، یہ کوئی بھی آدمی اب ایکوریٹلی یہ بات نہیں بتا سکتا۔ انڈیا کے سب سے بڑے جاسوسی ادارے CBI کے مطابق داؤد اپنی شناخت چھپانے کے لیے 13 مختلف ناموں کا استعمال کرتے ہیں۔ مہاراشٹرا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا داؤد ابراہیم اتنا بڑا زوراور ڈان بن کیسے گیا؟ یہ کہانی بذات خود ایک فلم کی کہانی ہے، اور بالی ووڈ میں تو کئی فلمیں داؤد ابراہیم کی زندگی اور اس کے حالات پہ اور ڈی کمپنی کے اوپر بنائی جا چکی ہیں۔ داؤد ابراہیم ایک پولیس کانسٹیبل شیخ ابراہیم علی کسکر اور آمنہ بیگم کے گھر 27 دسمبر 1955 کو مہاراشٹرا کے ضلع رتنا گیری کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ پیدائشی سرٹیفکیٹ پہ ان کا نام شیخ داؤد ابراہیم کسکر ہے۔ اسے شیخ داؤد حسن کے نام سے بھی اکثر لوگ بلاتے ہیں۔ 5 فٹ 4 انچ قد کے اس نوجوان نے اپنے والد کے ساتھ ممبئی کا رخ کیا، اور ابراہیم کسکر کا شمار ایماندار پولیس عہدیداروں میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی محکمہ پولیس میں انتہائی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ داؤد ابراہیم صاحب اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے ممبئی کی ایک اور دنیا سے زیادہ متاثر ہو گئے، انڈر ورلڈ۔ بتایا جاتا ہے کہ ان دنوں ممبئی میں افغانستان سے آئے پٹھانوں کا بہت زیادہ دبدبا تھا، اور یہ افغان تاجروں کو جو تھے رقم یہ لوگ افغان جو تھے یہ تاجروں کو رقوم قرض کے طور پہ دیتے تھے، جن کے بعد وصولی کافی سخت طریقے سے کی جاتی تھی۔ رقم وصول کرنے کے لیے اغوا اور قتل جیسے واقعات سے بھی وہ گریز نہیں کرتے تھے۔
और ताकत का तो ये आलम था कि मुंबई की पुलिस भी उन पर हाथ डालने से डरती थी। जनूबी मुंबई की पुलिस को खुसूसन इन अफगान्स की वजह से बहुत सरदर्दी रहती थी। इंस्पेक्टर रणबीर लेखा जनूबी मुंबई नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात था और उसकी फ़िक्र हमेशा यही होती थी कि किसी तरह पठान गैंग की सरगर्मियों पे काबू पा लिया जाए। एक दिन वो अपनी गाड़ी में आ रहा था, एक सिग्नल पर काफ़ी रश था। रणबीर अपनी गाड़ी से उतरा और देखा कि एक नौजवान अपने से दुगने कद के पठान को कुट रहा है, बाकायदा कुट रहा है पकड़ के, और उसके दूसरे के मुंह से खून निकल रहा था। रणबीर ने फ़ौरन उस नौजवान को कॉलर से पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा और उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उस नौजवान ने कहा कि मैं दाऊद इब्राहिम कसकर हूँ और मेरे वालिद पुलिस में काम करते हैं। इंस्पेक्टर रणबीर उसे लेकर पुलिस स्टेशन आई। उस वक्त उनके दिमाग में एक तजुर्बा करने का ख्याल आया। उन्होंने फिल्म शोले की तरह मुजरमों को ख़त्म करने के लिए एक गैंग बनाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने दाऊद को भी इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो जो अफ़गान गैंग है उनसे टक्कर ले और मुंबई पुलिस की मदद करे, और सिलसिले में उन्होंने कहा कि पुलिस उनकी खूब मदद करेगी। और इस तरह दाऊद इब्राहिम जो थे वो अंडरवर्ल्ड गैंग के एक अमीरज़ादा पठान के साथ मुंसलिक हो गए। उन्होंने अपने मुस्तकबिल के लिए जराइम की दुनिया का रास्ता इख्तियार किया, और ये वो रास्ता था जो ख़ुद मुंबई पुलिस ने उनको इख्तियार करवाया। और मुंबई के शहर जनूबी हिस्से में वाक़ टिमकर स्ट्रीट और मोहम्मद अली रोड के एक मामूली शख्स से अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। अपने मुखालफिन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाकर वो बिलाखिर मुंबई का डॉन बन गया। अमीरज़ादा पठान के बाद इसका ताल्लुक हाजी मस्तान और करीम लाला से भी रहा, और 80 की दहाई में जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का तूती बोलता था, और उसने दाऊद इब्राहिम के सर पर हाथ रखा दस्ते शफकत, और उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने खुद मुख्तार होने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, जो अमीरज़ादा पठान गैंग को बहुत नागवार गुजरी। ये गैंग दो भाई अमीरज़ादा और आलमज़ेब पठान के सर पर चल रहा था, और ये दोनों भाई करीम लाला के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने जराइम की दुनिया में उभरते हुए दाऊद को अपने रास्ते से हटाने की फुल कोशिश कर दी, और 1981 में होने वाले एक हमले में दाऊद इब्राहिम के बड़ा भाई साबिर इन दोनों भाइयों के हाथों मारा गया। दाऊद इब्राहिम मकामी तौर पर उस वक्त मशहूर हुआ जब इस पर मुंबई अंडरवर्ल्ड के दो बड़े दादा आलमज़ेब और मीरज़ादा के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। 80 की दहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम बाद में ज़मानत पर रिहा हो गए, और ज़मानत पर रिहा होने के बाद भाई साहब दुबई चले गए। दुबई में उन्होंने सोने की स्मगलिंग में हाथ डाला और बॉलीवुड की फिल्मी सनत में सरमाया लगाया और जायदाद बनानी शुरू कर दी। उस वक्त तक आम लोग उनके नाम से इस कदर वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन 1980 और 1990 में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का लीडर बन गया, और कहा जाता है कि उन्होंने अरबों डॉलर के असासे बना लिए दुबई में। इंडियन हुकाम का कहना है कि वो कानून से बचने के लिए 1986 में जब दुबई गए, ताहम उसकी अंडरवर्ल्ड कार्रवाइयाँ उस वक्त भी इंडिया में जारी थीं, और इसका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पर भी खासा असर है। दाऊद इब्राहिम पर कई फिल्मों की फिल्म साजी और इनमें काम करने के लिए चंद मखसूस अदाकारों को पैसे देने का भी इल्ज़ाम है। उनके करीबी दोस्त का कहना है कि कोई भी इनकी पेशकश रद्द करने की जुर्रत नहीं कर सकता। बॉलीवुड से इस ताल्लुकात का राज उस वक्त अफशा हुआ जब वो शारजा में क्रिकेट मैच की कवरेज के दौरान टेलीविज़न पर कई फिल्म स्टार्स के साथ नजर आई। सुना है वो आज भी भारतीय फिल्म स्टार्स के साथ राब्ते में। दाऊद इब्राहिम साहब से मिलने वाली भारतीय फिल्म स्टार्स में सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त, दीगर बहुत से नाम शामिल हैं, और दाऊद इब्राहिम के बॉलीवुड में असर रसूख का अंदाज़ा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि जब बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म में दाऊद इब्राहिम के अंदाज में एक डायलॉग बोला, तो उस गुस्ताखी के नतीजे में उसकी तलबी हो गई, और दाऊद इब्राहिम ने उन्हें एक ज़ोरदार चमाट मारा। और भारत की हमेशा यही कोशिश रही, क्रिकेट में जुए से लेके इस्मत फरोशी का कारोबार करने तक हर धंधे को और उसके इल्ज़ाम को वो दाऊद इब्राहिम के पेटे में डाल दे। साल 1993 में मुंबई में होने वाले 12 धमाकों के बाद उसको उस वक्त शोहरत मिली जब मुंबई पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है। उस वक्त दाऊद इब्राहिम दुबई में नजर आते थे। कहा जाता है कि मुंबई में उनके दस्तराज छोटा राजन से दाऊद के ताल्लुकात उन्हीं धमाकों के बाद
ख़त्म हो गए थे। छोटा राजन पर बाद में थाईलैंड में कातिलाना हमला हुआ। दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 या दूसरे नंबर का जो बंदा छोटा शकील, जिसके गिरोह में अबू सालिम भी शामिल था, ताहम बाद में अबू सालिम उनसे अलग हो गया। चंद साल कबल पोर्चुगल की पुलिस ने ऐलान किया था कि उसने अबू सालिम को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय पुलिस के मुताबिक अबू सालिम मुंबई में 1993 में होने वाले बम धमाकों का एक बहुत कलीदी किरदार, और इन धमाकों में 200 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। दाऊद इब्राहिम के दीगर काबिल एतमाद साथियों में उनके अपने भाई अनीस और उसके एक और भाई इकबाल कास्कर को दुबई पुलिस ने पकड़कर भारत डिपोर्ट कर दिया था। वो अब भी मुंबई के एक जेल में है। दाऊद इब्राहिम इस वक्त भारत के लिए मतलूब तरीन शख्स है। दाऊद और उनके भाई अनीस इब्राहिम पर 1993 के मुंबई धमाकों की मनसूबाबंदी का भी इल्ज़ाम डाला गया, जिसमें 257 लोग मारे गए थे, जबकि दीगर 700 अफराद ज़ख्मी हुए थे, और कहा गया कि ये बम धमाके 1992 में इन फसादात के इंतकाम में लिए गए, जिसमें गुजरात में सैकड़ों मुसलमान बेदर्दी से शहीद कर दिए गए थे। अब इंडियन हुकाम का कहना है कि दाऊद इब्राहिम अब पाकिस्तान में है और इसका मुबैना राब्ता कलअदम तंजीमों के साथ है। दिल्ली ने पाकिस्तान से इसे भारत के हवाले करने का मुतालबा भी किया, लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ यही है कि दाऊद इब्राहिम हमारे पास नहीं है और आखिरी बार दुबई में नज़र आए थे, वहीं पर पता करें। अमरीकी हुकाम का यह दावा है कि दाऊद इब्राहिम ने 1990 की दहाई में तालिबान की हिफाजत में अफगानिस्तान का दौरा भी किया। अमरीका के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने वसी पैमाने पर मनशियात की स्मगलिंग का धंधा भी शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में मनशियात का मरकज़ अफगानिस्तान समेत किसी भी दूसरे मुल्क में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस होने का कोई एक मुकदमा भी दर्ज नहीं है, जबकि 2008 में मुंबई में होने वाले दहशतगर्द हमले में भी दाऊद इब्राहिम को लपेटा जा रहा है, उसको मुलव्वस किया जाता है। और भारतीय अखबार इंडिया टुडे में छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवरों को दाऊद ने लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हमला में गिरफ्तार होने वाले वाहिद शख्स अजमल कसाब ने तफ्तीश के दौरान इस बात का एतराफ़ किया था कि दहशतगर्दी का असला और धमाका खेज़ मवाद उनको दाऊद ने या उनकी तंजीम ने मुहैया किया था, जबकि इस हकीकत का सबको अंदाज़ा है कि इस अजमल कसाब से क्या कुछ नहीं कहलवाया गया। और एक वीडियो भी मंजर आम पर आ गई जिसमें वो कह रहा था कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। दाऊद की एक बेटी की शादी मशहूर ज़माना क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद के साथ हुई, और जावेद मियांदाद के मुताबिक उनके बेटे जुनैद की दाऊद की बेटी या उनकी साहबजादी से मुलाकात जो है वो लंदन में तालीम हासिल करने के दौरान हुई। एक कहा जाता है उनका बेटा जो है वो कुरान पाक का हाफिज़ भी है, और सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी में अब एक बहुत बड़ा इनकलाब आ चुका है और वो मज़हब की जानिब बहुत ज़्यादा माइल हो चुके हैं। दाऊद इब्राहिम के करीबी साथियों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अक्सर नाम और शनाख्त बदल कर ज़ियारत के लिए मक्का और मदीने भी जाते रहते हैं। दाऊद इब्राहिम के बारे में भारतीय मुसलमान बिलखसूस गुजरात के मुसलमानों में बहुत अच्छे और नेक जज्बात पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि आज भी मुंबई और दिल्ली में दाऊद भाई का खुफिया राज है, और ये भी कहा जाता है कि भारत, पाकिस्तान, दुबई, बांग्लादेश और श्रीलंका में बासर तरीन हुकूमती शख्सियात भी उनके ज़ाती दोस्तों में शामिल हैं। अब भारतीय CBI का दावा है कि दाऊद इब्राहिम दुबई में रहते हैं, लेकिन वो कहाँ हैं और किस वक्त कहाँ आते जाते हैं ये किसी को नहीं मालूम, और किसी को कुछ मालूम है तो फिर वो उनका करीबी दोस्त है और वो तो नहीं बताएगा। उसकी पहचान के लिए अगरचे तस्वीर मौजूद है, लेकिन कोई भी पुलिस अभी तक उनको किसी भी मुकाम पे ना देख पाई है, ना तलाश कर पाई है। किसी और के लिए हो ना हो, लेकिन भारत के लिए दाऊद इब्राहिम का नाम एक डरावना ख्वाब है, जिसे सुनते ही वो हड़बड़ा कर खड़े हो जाते हैं। कुछ अनकन्फर्म खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल से दाऊद इब्राहिम जो हैं उनकी तबीयत बड़ी ख़राब रही, और यानी इंडियन मीडिया में तो खबरें आती रहीं कि जनाब वो फौत हो गए हैं, तो वो ये हो गया है। बाद में फिर वो बयानात आए तो पता चला कि वो खबरें गलत हैं। अब देखना ये है कि इंडियन मीडिया ने या इंडियन CBI ने जितने भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें सच्चाई भी है या नहीं है, लेकिन ये तो उसी वक्त होगा कि जब दाऊद इब्राहिम खुद फैसला कर लेंगे कि उन्होंने असलियत या सच सबको बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुबशर लुकमान YouTube चैनल. Do subscribe to it. Until the next time, Allah Hafiz.